let me introduce to you the second speaker of the day. He is none other than Dr. Jogendra Singh Shaklani. Dr. Jogendra Singh is an assistant director at UGC Human Resource Development Center, HPU, Shimla. He has done his MPhil and PhD from Himachal Pradesh University in the year 2002 and 2006 respectively. Currently, he is a HPU fellowship holder. Dr. Singh started his teaching in the year 2004 in various centers of HPU. He started his career as a research officer in the Integrated Institution of Himachal Studies in the year 2008 and became a senior researcher officer in the year 2009. He topped the HP Public Service Commission 2010 batch, and as such, in the year 2010, he joined the services in the Department of Higher Education, Government of HP College Cadre as an assistant professor. His interests are international relations, state politics, rural and social issues such as water conservation through protection of traditional village resources, and election studies. He has been an excellent teacher and has taught various courses such as political science, and he has performed NSS program officer's duty on various committees of college and university. Dr. Jogendra is a dynamic leader throughout his life. With this brief introduction, may I invite Dr. Jogendra Singh to enlighten the gathering with his message. Sir, you have to unmute yourself. Sir, we cannot hear you. Hello. Yes, we can hear Good you. evening. Thank you, ma'am, for your kind words. And at the outset, I would like to place my sincere thanks to the organizers. And this is a wonderful interaction with all my fellow participants who are joining this your online faculty development program across the country, as well as I have been informed that some of the participants from outside. I also place my sincere gratitude to Ma'am Shalja, who invited me and who contacted me for this talk. In spite of my busy schedule, I never say no to such type of activities, because personally I feel that this is always a learning process and one can learn. This is my humble submission from all the participants. Until or unless you are not required to say anything, you kindly mute yourself, because in virtual platform we are facing a lot of problems because there is a voice echoing if we have many peoples are on. So kindly mute yourself. This is my request, including organizers. So my screen is visible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. That's great. So, dear participants, I think we should start because I have a slot of around 1 hour. So I'm interacting with you people on this issue which has been given to me, that is hypothesis and its formulation. I have joined this previous session, and that is very interesting. Some people are asking about this different plagiarism tools or something like that. So even if I have time, I will also explain some of the aspect, because being associated with HRDC, we are inviting such type of speaker, as well as I am also delivering on the same topics in many academic platforms. But as I haven't given this hypothesis and its formulation, so directly I am talking about this my topic which has been assigned to me. If I have time, I will also add something about this plagiarism. So you see, when we are talking about this research, because before directly moving to the topic, what is hypothesis,
what is the basic criteria of all these things, why hypothesis. Personally, we have to be understand some of the term which is very important before formulating hypothesis. First of all, we have to have a deep understanding about the this research process. If we are talking in a normal way, in a layman perspective, research is nothing but it is something which we are going to add to the existing world and to the existing knowledge. So you see, every postdoctoral research, we will find a story of dedicated, focused, hard work despite struggle, mistake, and rejection. You see, when we are going in any type of research projects, whether that is a MPhil program, that is PhD program, we are going to write on some research paper, postdoc, or even in the form of books. That is a continuous process. This is like gardening. It required a continuous and consistent efforts from the researcher, so that consistency bhi bani rahe uspe, and our research should be up to the mark. So you see, conducting research is a integral part किसी भी प्रकार की व्यवस्था में. When we are talking in terms of any type of system, and when we are in academic worlds, we are talking in academic perspective. Conducting research is a integral part. I am talking about why it is an integral part, because when we are in research, it requires a lot of things. How to collect data, from where to collect data, उसको किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे, टूल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, उसका लिमिटेशंस क्या हैं स्टडी की, हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट उसके ऊपर क्या होता है. देयर आर सो मेनी इश्यूज. सो conducting research is an integral part, and it required skill and credibility. This is very important. I am using the two word skill and credibility. You see, प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से बनाया हुआ है. कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा डांस कर लेता है, somebody is good orators, कोई बहुत अच्छा टीचर हो सकता है. A good researcher is definitely a good teacher, can't possible. A good teacher is a good researcher, it is can't possible. So ये जो आपका रिसर्च है, that is very important, and it required skill and credibility. I am using the two word skill, मतलब how to conduct research, what are your parameters, what are your tools, what are your techniques, how you are going to conduct the research. There is a very famous term in present day about the research, that is Hawthorne effect. Has anybody heard about this term, Hawthorne effect? Yes, sir. What is this? Hello, is anybody going to interact with me? What is this Hawthorne effect? No, so please, no issue. This is also known as a observer effect, a type of alteration in individual behavior in response to their awareness of being observed. This can undermine the inquiry of research. This can undermine the integrity of the research. When somebody knows, देखिए, हमारा दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, दो प्रकार का हमारा व्यवहार होता है. When on record, on camera, we have different attitude. When off the record, हम कैमरा पे नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, we are not in a public platform, then we have a different type of attitude. You see such type of behavior among the politicians. वो किस तरह से व्यवहार करते हैं. When they come to the people, वो इतने नरम हो जाते हैं कि आप सोच सकते हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं होगा. But when they are in power, आप देखते हैं कि उनका किस तरह के रूप होता है. Similarly, when somebody knows that he or she has been observed, और उसको लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मुझसे कोई पूछा जा रहा है, डाटा कोई कलेक्ट किया जा रहा है, या उस डाटा जो है उसको अल्टरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. सो इट इज नोन एज ए ऑब्जर्वर इफेक्ट. इट मीन्स कि जो रिसर्चर है, researchers, the duty and responsibility lies on the researchers to know about the truth, because people are not in a habit to say something directly. यदि आपसे कोई ये पूछेगा कि are you happy with the present government, कोई बोलेगा yes I am happy. Do you think that there are some people who say directly no? No, not at all. Because वो क्यों नहीं होते हैं? Because they know that if they are saying something, it is recorded, it has been produced as a document somewhere, and they have been punished. So this Hawthorne effect or observer effect is very important, and this is very pertinent for a social scientist when he or she is going to field. जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो किस तरह से लोगों से सच उगलवाया जाए, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें इशू रहता है. सो यू सी, there is a challenges and issues in research. In present scenario, how to create a hypothesis, what are the parameters, what are the different environment around us who affect your thought process, your thinking level, कौन कौन सी चीजें आपको प्रभावित करती हैं जब आप उस पे जाते हैं.
So challenges and issues in research, there is a huge difference in the lab and outdoor research. Medical sciences वाले research करते हैं, they are doing in lab. They have set parameters, they have set techniques, they have set tools, and they know about the result. If the result is expected, it means कि आपकी research सही है. If result is not expected, आपका research सही नहीं है. But in social sciences, we have to do so many things. मैंने कहा आपको हॉकथॉर्न इफेक्ट है, और इंडिविजुअल आपको वॉइस देना पड़ेगी, अपना आपको ऑब्जर्वेशन मेथड उस पे लाना पड़ता है. सो देयर आर मेनी इश्यूज एंड पीपल आर नॉट इन हैबिट टू से द ट्रुथ. जब वो सच नहीं बोलते हैं तो उस स्थिति में सच को कैसे सामने लाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So there is a difference in lab and outdoor research, especially ICT and modern notion make it more complex and difficult. You see, आज हम कुछ भी करते हैं, we have every type of tool. Somebody is asking about this plagiarism tool. आप कहीं भी गूगल कीजिएगा, आप पैराफ्रेजिंग टूल डालिएगा, सारी आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. होल द कंसेप्ट, होल द टॉपिक हैज बीन चेंज्ड, और आप उसको कैसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, डिजायर क्या चाहते हैं, दैट इज देयर. सो आप देखते हैं कि जो आईसीटी है, जो आपका इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उन्होंने, और जो मॉडर्न नोशन ऑफ रिसर्च हो चुका है, उसने इसको अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट बना दिया है. सोशल साइंस रिसर्च इज गेनिंग इंपॉर्टेंस इन प्रेजेंट सिनेरियो. देखिए, I am a student of political science. Aristotle is talking man is a social animal. When he is talking about social animal, it means कि we can't treat human being as in isolation. हम उसको अलग से नहीं कर सकते हैं. उसके ऊपर सोसाइटी का, एनवायरमेंट का, अपनी जो उसके चारों और इर्द गिर्द जो चीजें घूमती हैं, उन सबका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पे प्रभाव होता है. सो सोशल साइंस रिसर्च आज क्यों इंपॉर्टेंस गेन के लिए, आज समाज में बहुत से इश्यूज रेज हो चुके हैं. वी आर टॉकिंग इन दिस प्रेजेंट कोरोना पीरियड, यू सी व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन. अब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि मैं ऑनलाइन इस तरह के प्लेटफॉर्म पे लेक्चर दूंगा. आपने भी कभी, यू नेवर थॉट अबाउट इट कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऐसा आएगा कि कहीं से भी आपको कोई भी व्यक्ति लेक्चर दे सकता है. मेरे से पहले का लेक्चर फॉरेन से, पहले हम पता नहीं कहाँ, द प्रीवियस स्पीकर मे बी फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, बट इन प्रेजेंटली आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस हिल्स ऑफ क्वीन शिमला. तो यू सी द डिफरेंस. ये जो मॉडर्न नोशन है, दैट हैज बीन मेक इट ए मोर कॉम्प्लेक्स एंड वी नीड ए प्रॉपर मेथोडोलॉजी. आपने रिसर्च कैसे करनी है, आपके पैरामीटर्स क्या, हमारी दिक्कत क्या होती है. वी हैव डिसाइडेड अ टॉपिक विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स टूल्स, टेक्निक्स, डाटा कैसे कलेक्ट करें, उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी, लिमिटेशंस क्या होगी, उसका पॉसिबल इंपैक्ट क्या रहेगा. मेरे ऊपर बहुत से प्रेशर्स भी रहते हैं एज ए रिसर्चर. सो मैं विदाउट केयरिंग ऑल दीज थिंग्स, आई हैव बीन डिसाइडेड टॉपिक एंड आफ्टर 1 month आई एम गोइंग टू चेंज माय टॉपिक. आई हैव नो डायरेक्शन. I am directionless. I don't know how to collect the data. I don't know what are my objectives. I don't know which path I have to be follow, which techniques and tools I have to use, what is its financial cost. So, Ji Arif Saab, you want to say something, sir? Excuse Professor me, Mohammad sir. Arif, raising your hand, sir. You want to say something? I will take all your question in the last session. Probably I will left this before 15 minutes. So you see. Excuse me, sir. Ji, Are you moving slides because they are not moving? No. I'm not moving my slide. Okay, sir. Monica ma'am, I'm in HRDC. I do all these things. Don't worry. So मैं अभी करूंगा आगे, है ना. So in social science research be gaining importance, we need a proper methodology. मैंने कहा कि I'm connecting all these things with hypothesis. कि हाइपोथेसिस, तो व्हाट इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस तो आपका होगा कि आप कोई टॉपिक तय कर लेंगे, लेकिन आई एम टॉकिंग इट इन पर्सपेक्टिव, इन बैकग्राउंड ऑफ दिस रिसर्च. क्योंकि आज रिसर्च में क्या हो रहा है और किस हिसाब से हमें करनी है. वी आर टॉकिंग दैट सोशल साइंस हैज गेन इंपॉर्टेंस. आज समाज में वी हैव ए ह्यूज इंपैक्ट ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन ऑन द स्टूडेंट्स. डू यू थिंक दैट दिस ऑनलाइन एजुकेशन और आपका जो 15-18 इंच का स्क्रीन है, दैट रिप्लेस ए टीचर्स? वो जो एक इंटरेक्शन, आई टू आई कंटेक्ट रहता है, एक इंटरेक्शन रहती है, वो जो सोशल बिहेवियर रहता है, वो खत्म हो चुका है. एंड यू सी विद इन दिस 2 or 3 years ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम, वी हैव आवर यंग जनरेशन हैज बीन स्पॉइल्ड. आप देखेंगे इंटरनेट में बच्चे क्या देख रहे हैं. हम कोई 24 घंटे उनके ऊपर कैमरा नहीं लगा सकते हैं. वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू चेक माय बोर्ड 24 hours, what they are watching, what they are looking,
nobody knows. So these all are possible impact, and there are many also many other impact. You see, आज सोसाइटी में महिलाओं के ऊपर बहुत से अत्याचार हो रहे हैं, अनरेस्ट सोसाइटी में इतना है, आप देखेंगे कितना ज्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग्स को लेकर के, या आप पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे किस तरह से चीजें जो है वो समाज को प्रभावित कर रही हैं। आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आज की डेट में बहुत बड़ा हो चुका है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं, आज आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है स्टडी करने का। सो सोशल साइंसेज ने भी एक बहुत बड़ी वो कर ली है। सो रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू एक्वायर न्यू नॉलेज। मैंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें हम थोड़ा बहुत ऐड करते हैं। वी आर गोइंग टू ऐड समथिंग इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। इफ समबडी इज ऑफ द ओपिनियन कि माय रिसर्च इज गोइंग टू फेट ऑफ द कंट्री, मुझे लगता है बहुत गलत फहमी में जी रहा है। We are not going to change the course of anything, but we are adding little bit. And if we are adding little bit, that is a huge contribution of we people for the community. So this research is a everyday procedure. And it is like a gardening. आपको जो gardening की तरह जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं उस पे आएंगी. So it is a modest attempt. Why we do, where we do, when we do, it is hardly matter. आप देखेंगे दर्जी होता है ना, जो दर्जी का काम करता है वो हर प्रकार की चीजें सिलता है, उसको कोई फर्क नहीं है। वो कोट भी सिल लेगा, पजामा कुर्ता भी सिल लेगा, और मेल्स के कपड़े भी सिलता है, फीमेल्स के कपड़े भी सिलता है। he or she specialized in every effort because that is a continuous process. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। he knows about his methodology. वो अपनी मेथोडोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा जानता है। so I am coming to my point that you see hypothesis and its formulation. If I am talking about this hypothesis, a simple hypothesis is a prediction of the relationship between two variables, that is independent and dependent. दो वेरिएबल्स की बात करें, that is independent and dependent. एक independent variables होता है and second one is dependent, जो उसके ऊपर depend करता है. It means drinking sugary, for example, drinking sugary drinks daily leads to obesity. आप यदि मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाएंगे तो मोटापे की तरफ बढ़ेंगे. In another way, a hypothesis is an approximate explanation that relates to set of facts that can be tested by certain further investigation. जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग इन ए हाइपोथेटिकल, हम एक अमूमन ये मान के चलते हैं कि दिस इज इन माय माइंड, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, ये मेरा रास्ता होगा, ये मेरा तरीका होगा, दीज आर माय टेक्निक्स, दीज आर माय टूल्स, दिस इज माय सैंपल साइज, मैं कैसे कलेक्ट करूंगा, और वो मैं एक मान के चलता हूं. लेकिन मेरी हाइपोथेसिस प्रूव भी हो सकती है और मेरी हाइपोथेसिस डिसअप्रूव भी हो सकती है. नल, आप आगे मैं उसके बारे में भी बात करूंगा जो नल हाइपोथेसिस है. सो यू सी, मैंने क्या कहा कि हाइपोथेसिस एन अप्रोक्सीमेट एक्सप्लेनेशन दैट रिलेट्स टू द सेट ऑफ फैक्ट्स दैट कैन बी टेस्टेड बाय सर्टेन फर्दर इन्वेस्टिगेशन. So in this presentation, I'm going to talk about you this meaning of hypothesis, definition, purpose, characteristics, types, and formulating hypothesis. So you see, in ordinary context, hypothesis more assumption or supposition which are to be proved or disapproved, and in research context, hypothesis is a formal question that is intended to be resolved. This is very important. Hypothesis is a formal question that is intended to be resolved. कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको कहीं ना कहीं पे रिजॉल्व करना पड़ेगा, जिसका आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं पे बात करना पड़ेगी. So hypothesis is defined as a wild or wise guess, जिसको हम एक तुक्का कहते हैं कि अंधेरे में तीर मारने वाली बात होती है. We have some idea about the my topic, my area of research, and हम उसको एक approximation लेकर के आगे चलते हैं. So it is a wild or wise guess, an educated guess. Hypothesis is also known as a educated guess because we are in academic world. And this research is not a every man cup of tea, and this has been done by some specified people. A tentative point of view, ये किसी का भी एक टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है. टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मींस कि आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, 2 into 2 4 नहीं बोल सकते हैं, 2 + 2 4 नहीं बोल सकते हैं. दिस इज अ टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. ए प्रपोजिशन या नॉट यट टेस्टेड, एक ऐसी प्रपोजिशन है जिसको आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया, उसके आपको टेस्ट करना है. एंड प्रपोजिशन का मतलब होता है समथिंग ऑफर्ड फॉर कंसिडरेशन और एक्सेप्टेंस. हमने कोई रिसर्च किया, that research should be accepted by the society. In earlier, I am saying that research is an integral part and it requires two things. That is skill and credibility. आपको skill means you know how to conduct the research, and credibility जो आप कह रहे हैं that should be accepted by the society.
यदि आप कोई दवाई बना के दे रहे हैं, कोरोना टाइम में हमने कहा कि हमने कोवैक्स बनानी है, कोविशील्ड बनानी है, एंड इफ पीपल आर नॉट रेडी टू टेक दैट डोज, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. बट पीपल आर रेडी, people are happy, and when it is tested among the peoples, they are getting benefit out of it. So it is something, a proposition not yet tested, कि उसको हमने टेस्ट नहीं किया होता, टेस्ट नहीं किया होता, उसको हमने टेस्ट करना है. A preliminary explanation का मतलब हुआ it helps in narrow your research topic. आपने क्या टॉपिक लिया उसको नैरो करता है. नैरो योर पैरामीटर्स, आपके पैरामीटर्स को नैरो करता है. क्रिएट क्वेश्चन, क्या करें हम when we are creating this hypothesis? What we should do? We should create some questions that your research will address. कि आपका रिसर्च क्या है. सपोज वी आर टेकिंग ए टॉपिक की इन प्रेजेंट टाइम हम ये लें कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन टू द पीपल्स और टीचर्स. तो हमें पता है वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द पीपल एंड अबाउट द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. तो उसका क्या इंपैक्ट है, ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसमें इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं. देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं. बट द क्वेश्चन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो दिस इज ए प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन, इट मींस इट हेल्प्स इन नैरो योर रिसर्च टॉपिक. आपकी जो रिसर्च होती है वो बहुत बड़ी होती है. क्या कभी आप लोगों ने ये, कभी आपके मन में प्रश्न आया, हैव यू थिंक अबाउट दिस, कि अपना जो हॉर्स होता है उसके वो जो बिल्कुल लगाया होता है कान के आगे को, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कभी किसी के ध्यान में ये चीज आई? आप कई बार घोड़े पे बैठे होंगे, बग्गी पे बैठे होंगे, हैव यू थिंक अबाउट दिस? कभी आया माइंड में ये चीज? कोई पूछना चाह रहा है कुछ? Arif Saab and Pooja Vasudeva, they are raising their hand. They want to ask something. Am I audible? Sorry for the interruption. Can we explain it in English? We don't know English. Deepa ma'am, am I audible? Yes, sir, you are audible. So I already request my fellow participants, if they have any query, they can ask in the last. कुछ बोल, Mohammad Arif Saab, you want to ask something? Hello? Yes, sir, you are audible, sir. No, I am audible, ma'am, but there are some more participants who are raising their hand time and again. So I am asking to Professor Mohammad Arif, it is technical error or by default, or he want to ask something. Okay. Participants are requested to. No, I should continue. No issue, ma'am. Actually, this is one of the error of this online platform. We have no control what people doing from other side. So you see, a preliminary explanation, it means it helps in narrow your research topic. If we are talking about, देखिए हम जनरल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हम सारी चीजों को नहीं ले सकते हैं. हमारी रिसर्च जो है वो एक बिल्कुल फोकस वे में होती है. जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, घोड़े को वो आगे को इसलिए बांधा होता है कि वो सीधी दिशा में चले, क्योंकि उसको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे चीजें. यही चीजें हम रिसर्च में देखते हैं. मेरा टॉपिक क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके टूल्स क्या रहेंगे, हाउ आई कैन कलेक्ट माय डाटा, ये सारी चीजें आपकी हाइपोथेसिस जो है वो कहीं ना कहीं पे उन चीजों को प्रेजेंट करती है. सो यू सी, a hypothesis is a conjectural statement of the relation between two or more variables. ये conjectural statement होता है, it is based on information that is not certain or complete. There is something undeniably conjectural about such claims. जो आपने कोई बात कही, मान लो आप कहते हैं कि ऐसा होगा. अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. पीपल आर टॉक, हमने वी हैव हर्ड अबाउट दिस रामायण एंड महाभारत, और हमने बहुत सी वहां पे बातें सुनी, ठीक है ना. हम कहते हैं कि दैट इज हाइपोथेटिकल. What it means, conjectural statement is based on information that is not certain or complete. कि आपका एक गैस होता है, it is a wild guess, it is educated guess. आप एक तुक्का लगाते हैं और उस अनुमानित अंदेशे के साथ आप वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाती है. So hypotheses are single tentative guesses, good hunches assumed for use in devising theory or planning experiments, intended to be given in direct experimental tests when possible. Hypothesis is a formal statement that presents the expected relationship between an independent and dependent variable. So if I am talking about this purpose of hypothesis, you see, it guides, gives directions to the study and investigation. जो पहला हमारा इसका वो उद्देश्य है आपकी हाइपोथेसिस का, ये क्या बोलती है? इट गाइड्स, गिव्स डायरेक्शंस टू द स्टडी इन्वेस्टिगेशन. ये आपकी स्टडी को गाइड करती है, डायरेक्शन देती है आपको किस ओर जाना है,
आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है। सेकेंडली, इट डिफाइंस फैक्ट दैट आर रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट। देखिए, हम जब किसी भी टॉपिक को तय करते हैं, मुझे क्या करना है, when in the first day we have a different perspective, in the last day we have a different approach and perspective, so it defines facts that are relevant or non relevant. What are the facts which are relevant? मुझे डाटा क्या कलेक्ट करना है, मुझे कैसे डाटा कलेक्ट करना है, मेरा एरिया ऑफ रिसर्च क्या होगा, सैंपल साइज क्या होगा, suggest which form of research design is likely to be most appropriate. कौन सा रिसर्च डिजाइन उसके लिए अच्छा रहेगा, limit the research to specific area. ये जो आपका स्पेसिफिक एरिया है उस पे रिसर्च को लिमिट करता है. Then provides a framework for organizing the conclusion of the findings, limit the research to specific area, offers explanation for the relationship between those variables that can be empirically tested. Empirically means जिनको आप फील्ड में जाकर के टेस्टेड करते हैं. Furnish proof that a researcher has sufficient background. क्या बोलता है उन प्रूफ्स को कि उसको एक प्रॉपर उसकी जो रिसर्च है उसकी एक उसको प्रॉपर बैकग्राउंड है. स्ट्रक्चर द नेक्स्ट फेज इन द इन्वेस्टिगेशन एंड देयरफॉर फर्निश कंटिन्यूटी टू द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम. हाइपोथेसिस आपकी रिसर्च को सही दिशा की ओर ले जाती है, आपके टॉपिक को नैरो करती है, आपके पैरामीटर्स को तय करती है, आपके एरिया को, आपकी डायरेक्शंस को, आपके टूल्स को, आपके टेक्निक्स को कहीं ना कहीं पे कवर अप करने की कोशिश करती है. सो यू सी, we are talking about the basis of hypothesis. जब आप अपनी hypothesis को कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव में, when you are constructing your hypothesis, उसके बेसिस क्या होते हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, आप व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आप देखेंगे बहुत सा जो रिसर्च है दैट इज बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. आपके इर्द गिर्द में इन अराउंड आपके किस तरह की घटनाएं घटती हैं उनका आपके ऊपर प्रभाव होता है. दैट मे बी ऑफ योर एरिया ऑफ रिसर्च. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमफिल एंड पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च. आई एम टॉकिंग अबाउट आप सिंपल कोई रिसर्च करते हैं किसी चीज के ऊपर, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, आपका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश कैसा है उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं. बिजनेस एथिक्स, आप देखेंगे आज की डेट में बहुत सी चीजें मार्केट में चली होती है. समटाइम आई एम टॉकिंग इन लाइटर वे कि देयर इज एड ऑन द टीवी कि बोरो प्लस लगाइए और गोरे हो जाइए. डू यू थिंक कि काला आदमी बोरो प्लस लगा के गोरा हो जाएगा? नॉट पॉसिबल. लेकिन फिर भी हम उस बोरो प्लस को लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो उन बोरो प्लस को लगा करके एक इस तरह का क्रिएट माहौल करते हैं कि नहीं ये है. सो दिस इज ए यू सी बिजनेस टेक्निक्स, इकोनॉमिक इवेंट्स, किसी भी कंटेक्स्ट में आपके यहाँ पे जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो होती हैं. देन वी हैव ए रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रेजेंट सिनेरियो. यू सी व्हाट आर द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ दिस रिसर्च. इफ वी आर टॉकिंग इन दिस पैंडेमिक टाइम, हमने बहुत सी रिसर्च की. देयर आर सो मेनी रिसर्च व्हिच हैज बीन कंडक्टिंग ऑन द पैंडेमिक. मैंने यही कहा कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन द पीपल, ऑन द स्टूडेंट्स, ऑन द फैकल्टीज. क्या ये पॉसिबल है? डू यू थिंक हिंदुस्तान की तरह कंट्री में जहां पे किसी माँ बाप के 4-4, 5-5 बच्चे भी हैं, इज इट पॉसिबल फॉर दैट टाइप ऑफ और दोस टाइप ऑफ फैमिलीज टू अरेंज सिंगल स्मार्टफोन फॉर देयर एवरी चाइल्ड? नॉट पॉसिबल. तो कैसा प्रभाव है इस चीज का आप देखेंगे. या ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसमें टू वे कम्युनिकेशन कहाँ पे है. मैंने आई ऑलरेडी स्टेटेड कि किस तरह से आपके जो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है क्या वो टीचर्स को, टीचिंग्स को जो आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है, जो बिहेवियर हम समाज में सीखते हैं उसको वो प्रभावित कहीं भी नहीं कर सकता है. सो आज आप देखेंगे रिसेंट ट्रेंड्स क्या है रिसर्च के. आज सोसाइटी में जो साइकोलॉजी के लोग हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं. आज आप देखेंगे इन प्रेजेंट सिनेरियो यू आर लुकिंग दिस रशियन एंड यूक्रेन वॉर. व्हाट इज दिस बेसिकली? दिस इज ए थ्योरी ऑफ डोमिनेंस. वंस अगेन रसिया वांट्स टू बी होल्ड हिज ओल्ड जो स्ट्रॉन्ग था, जो कोल्ड वॉर के टाइम की पोजीशन थी उसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है. अदरवाइज इतने टाइम में तो कई यूक्रेन को खा सकता था. बट ही वांट टू शो द वर्ल्ड. वो दुनिया को दिखाना चाहता है, वो अमेरिका को दिखाना चाहता है कि दिस इज नॉट ए सिंगल मैन गेम. सो देयर आर सो मेनी इश्यूज. आज महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं की स्थिति को लेकर चर्चा हो रही है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर चर्चा हो रही है. आज आप देखेंगे एलजीबीटी समुदाय को लेकर के चर्चा हो रही है. आज पीपल इन प्रेजेंट सिनेरियो, इफ यू आर टॉकिंग इन द योर थॉट प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए हाइपोथेसिस, जो रिसेंट ट्रेंड्स चले हैं आज उनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिसर्च का कहीं ना कहीं पे इशू है. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस, टू बी कंप्लीट द हाइपोथेसिस मस्ट इंक्लूड 3 कंपोनेंट्स. कौन कौन चाहिए? वेरिएबल, पॉपुलेशन, रिलेशन. वेरिएबल्स जिसकी आपने स्टडी करनी है, पॉपुलेशन जो लोग हैं और उनका दोनों में आपस में क्या संबंध है. फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज फैकल्टी एफिशिएंसी विल इंप्रूव स्टूडेंट्स रिजल्ट. नो डाउट यदि आपकी फैकल्टी अच्छी होगी, उसको आप इक्विप करेंगे मॉडर्न टेक्निक से,
then you definitely improve your student result. जैसी आप पोजीशन तय करेंगे उसके हिसाब से आपकी बहुत सी चीजें होंगी. If I'm talking about characteristics of good hypothesis, conceptual clarity. First parameters क्या है? Hypothesis should consist of clearly defined and understandable concept. It should be stated in a very terms that meaning and implication of which cannot be doubted. To facilitate the conceptual clarity, hypothesis can be stated in declarative statement in present tense. This is very important. Declarative statement in present sentence. आपको declarations करना पड़ेगी उसकी. आप उसको फ्यूज ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम declarative statement in present sentence. And secondly, empirical reference. किसी भी प्रकार की रिसर्च का, research must have an ultimate empirical reference. Empirical reference means कि उसका समाज में कोई ना कोई अस्तित्व होना चाहिए, because research is ultimately for the society. हम सोसाइटी की बात करते हैं, हम हाइपोथेटिकली कोई बात कर रहे हैं. हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि चांद लोग पे व्यक्ति का जीवन कैसे होगा, क्योंकि हम चांद पे अब नहीं पहुंचे हैं. जब हम चांद पे जाएंगे तो हम वहां की बात कर सकते हैं. सो हाइपोथेसिस के लिए बी रिक्वायर्ड रिसर्च मस्ट हैव एन अल्टीमेट एम्पिरिकल रेफरेंस. नो यूजेबल हाइपोथेसिस कैन एम्बॉडी मॉरल जजमेंट. हम इसको मॉरल नहीं हो सकते हैं. व्हाट आउट टू बी, ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा बहुत अच्छा होना चाहिए, समाज में बहुत सी अच्छी चीजें होनी चाहिए. व्हाट इज, क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट में यदि समाज में वास्तविक चीज का आपने अध्ययन करना है तो जो आपको इंपीरिकल रेफरेंस की जो मैं बात कर रहा हूं, इट मींस कि सोसाइटी में जो चीजें हैं उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग रेफरेंस, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन all these things. Then your research should be relevant. आपकी जो ये जो रिसर्च है वो हेलो, Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, yes, sir. Okay, ठीक है. So it should be objectivity. Hypothesis must be objective, which facilitate objective in data collection and keeps the research activity free from researchers' value judgment. Objectivity means जब भी हम कोई टॉपिक तय करते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन हमें उसको अपना पूर्वाग्रह से दूर रखना पड़ेगा. यदि हमें वास्तव में समाज में किसी भी चीज का जो रिसर्च करना है, उस रिसर्च को लेकर के हमें वास्तविक स्थिति का आकलन करना है. मान लो हम इस प्रकार का संबंधों का अध्ययन करते हैं कि समाज में जो पुरुष और स्त्री है उसका आपस में क्या संबंध है, या उसका परिवार में क्या स्थिति है. अब हम ये हाइपोथेटिकली थोड़ी कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है. आज भी हम पितृ प्रधान समाज में रहते हैं, जितने मर्जी पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन महिलाओं की स्थिति नंबर 2 की है. ऐसी बहुत से फैमिलीज होंगी जहां वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होंगी, या जहां पे वो बड़ा से ऑफ कर सकती हैं. सो हम एक पूर्वाग्रह मान के ये नहीं चल सकते कि ऐसा ही होगा, ऐसा, जबकि ऐसा है. लेकिन यदि हमें कोई आज की डेट में एक्टिव रिसर्च करनी है तो आज आप देखेंगे देयर आर सो मेनी इश्यूज. आज बहुत से क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही है. उनका परिवार में, निर्णय क्षमता में, चाहे वो एकेडमिक्स में है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे वो प्रोफेशनल उनकी लाइफ है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल बढ़ चुका है. सो इस पूर्वाग्रह के साथ नहीं जा सकते हैं कि वो 2M दर्जे की है. ऐसा नहीं है. आज समाज में बहुत सी चीजें चेंज हुई है. स्पेसिफिसिटी, इट शुड बी स्पेसिफिक, नॉट जनरल. हमारी हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ स्टडी करनी है. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इफ आई वांट टू स्टडी, मुझे ऑनलाइन बिहेवियर तय करना है बच्चों का, तो मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा. फिर मुझे ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपको मोबाइल मिला कि नहीं, आपके इंटरनेट फैसिलिटी है कि नहीं है, आपके लालियों के बारे में नहीं पूछ सकता हूं. मेरा रिसर्च एरिया बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू सी, it should be relevant. आपकी जो रिसर्च है that should be relevant. The hypothesis should be relevant to the problem being studied as well as objective of the study. Hypothesis must have relevance with theory under test in a research process. Testability, किसी भी रिसर्च के लिए टेस्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. यदि आप उसका टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो कोई रिसर्च नहीं होती है. Consistency, a hypothesis should be consistent with an existing body of theories, research findings, other hypotheses. It should cross-blend with existing knowledge. Simplicity, a hypothesis should be formulated in simple and understandable term. It should require fewer condition and assumption. Unfortunately, हम क्या करते हैं, हम ऐसा टॉपिक ले लेंगे जिसका ना मुझे स्वयं पता होता है, ना सुपरवाइजर को पता होता है, और जब हमें उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है, जब हमें अपना पाथ क्लियर नहीं होता है, तो हमें बहुत सी चीजों को समस्या वहां पे देखना पड़ती है. देन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स, जो हम रिसर्च करते हैं
उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जो रिसर्च है उसकी जो टेक्निक्स है, कौन सा डाटा होगा, कौन से टूल्स लगेंगे। क्या मैं सपोज मैं कोई ऐसी रिसर्च ले लेता हूं कि मुझे डेली या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या 6 महीने में 2 बार मुझे अमेरिका जाना पड़े, तो क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन मुझे अलाउ करेगी अमेरिका जाने के लिए? सो मेरी जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, मेरी लिमिटेशन होती है स्टडी की। जब भी हम अपना रिसर्च लिखते हैं उसमें हम लिमिटेशन भी लिखते हैं, वो यही है कि करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, बट मेरे पास रिसोर्सेज जो हैं, टेक्निक्स जो हैं, टूल्स जो हैं, और जो उसका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो आपकी रिसर्च है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा उसका इशू रहता है। देन पर्पजिवनेस, the researcher must formulate only purposeful hypothesis which has relevance with the research problem and objective. आज आप देखेंगे बिग इशू इन प्रेजेंट ओनली फॉर डिग्री सेक। आज हम देखेंगे इतनी ज्यादा रिसर्च हो रही है, कहां जा रही है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ माय रिसर्च टू द सोसाइटी? मैं 400 पेज की थीसिस लिख रहा हूं, मैं 300 पेज की थीसिस लिख रहा हूं मैं, लेकिन मेरा समाज के लिए उसका क्या लाभ है? दैट इज ओनली फॉर माई पर्सनल गेन। आज मेरा नाम हो जाएगा। जब यहाँ पे बायोडाटा पढ़ते हैं लोगों का, मैं भी एचआरडीसी में बहुत से लोगों का बायोडाटा पढ़ता हूँ अभिजीत सर, तो वो क्या देखते हैं, 40 पेपर, 20 उसने किताबें लिखी, कब लिखी? सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। एज ए गुड रिसर्चर आपने कोई चीजें करनी है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ए टीचर्स कि वो टीचिंग भी करेगा, उसका परिवार भी है, ही हैज आल्सो मेनी अदर असाइनमेंट्स, और उसका बायोडाटा भी आप उस चीज में जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो पर्पजिवनेस होनी चाहिए एंड वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाई होना चाहिए। मैंने कहा कि स्किल एंड क्रेडिबिलिटी, दो चीजों की मैंने बात की थी। ए गुड हाइपोथेसिस कैन बी एक्चुअली वेरीफाइड इन प्रैक्टिकल टर्म्स। मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूं? मैंने कोई एग्जांपल दिया, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस वाटर ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो मैंने देखा घर में, जब मैं गया, जो अपने ट्रेडिशनल कुएं हैं, बावड़ियां हैं, मैं उनको देखता हूं कि उनका पानी पीने के लायक नहीं है। मेरे दिमाग में स्ट्राइक करती है कि पीने के लायक क्यों नहीं है। मैं उसका टेस्ट करता हूं, मैं टेस्ट करता हूं, तो मेरे दिमाग में एक नई, मेरी जो हाइपोथेसिस है उसको एक नई डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि जहां पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो वाटर बॉडीज नेचुरल थी, दे हैव बीन इन्फ्लेटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। जब आपने हाउस बना दिए, सीवरेज सिस्टम वहां पे होगा, तो नेचुरल रिसोर्सेज अपने आप खराब हो जाते हैं। सो दिस इज न्यू आइडियाज। आपको आपके हाइपोथेसिस जो है दैट शुड बी वेरीफाइबल, उसको आपको कहीं ना कहीं पे वेरीफाई उसको करना पड़ेगा। सो यू सी, profound of effect. A good hypothesis should have profound effect upon a variety of research variables. Economical, the expenditure of money and the time can be controlled if the hypothesis underlying the research undertaken is good. कई चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। If I am talking about the sources of hypothesis, you see, थियोरिटिकल सोर्सेज हैं, एकेडमिक लिटरेचर है, प्रीवियस पहले रिसर्च क्या हुई है, आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, these are very important. If I am talking about the types of hypothesis, this is very important. We have two types. Generally, we have hypothesis, you say this one, and it is general hypothesis. It is in two: universal, existential. Statistical hypothesis, this has been used by the people of economics and commerce and management. Null hypothesis, alternative and research hypothesis. So you see, universal hypothesis, it is one which denotes that the state relations holds for all specified variables for all times and all species. कि 2 गुना, if 2 into 2, 4 is in Shimla, it is 2 into 2, 4 in Shillong. It is in 2 plus 2 is in America, 2 plus 2 is 4 in Russia. So hardly matter. For example, if brave soldiers are frequently rewarded for their better performance, they will perform better. This relationship holds true for all time and all space. No, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है. Existential hypothesis, it is one in which the stated relationship between is said to exist for at least one particular case. For example, there are at least few corporate workers who are sconger and may not perform better despite the fact that he is being awarded suitably for better performance. जब दूसरों को मिलेगा, उसको मिलेगा. Then we have a null hypothesis. This is very important. Null hypothesis always predicts that there is no relationship between the variables being studied. कोई संबंध नहीं है दोनों का आपस में. The researcher wishes to disapprove this hypothesis. It is denoted by hypothesis null. For example, there is no relationship between smoking and lung cancer. जरूरी नहीं है कि होगा. Then we have a alternative hypothesis. The alternative hypothesis always predicts, क्या बोलती है, that there will be a relationship between the variables being studied. It is denoted by HA. HA means hypothesis approved, and this is in two way. ये क्या बोलती है, एक मिनट में पीछे जाऊंगा आपके एक बारे. If I am talking about this null hypothesis, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं. The type of water I feed the flowers and growth of flowers. अब मैं कैसा पानी देता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट हार्डली मैटर कि मैं बिस्लरी का पानी दूंगा तो उसमें बहुत अच्छा फूल खिलेगा, कमल कीचड़ में खिल रहा है. एंड देयर इज नो इफेक्ट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स.
मैंने क्या कहा, नल हाइपोथेसिस में कोई वहां पे उसमें फर्क नहीं है। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हमने क्या कहा कि दोनों में संबंध होगा और दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव होगा। जैसे एजुकेशन का सैलरी के ऊपर बहुत डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है, स्कॉलरशिप का जो बच्चों के स्टैंडर्ड है उसके ऊपर बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पे प्रभाव पड़ता है। इफ द हाइपोथेसिस सिंपली प्रेडिक्ट्स दैट देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स, देन इट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल कौन सी होगी, जब हम कहते हैं कि उसमें फर्क है, स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर, ये प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, दिस इफेक्ट में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, लेकिन कैसा होगा ये क्लियर नहीं है। बट यदि हम कहते हैं कि ये if however the hypothesis use so called comparison terms such as greater, less, better, worse, then it is directional hypothesis. It is directional because it predicts that there will be a difference between the two groups and it specifies how the two groups will differ. दोनों ग्रुप्स में क्या प्रभाव है, दोनों ग्रुप्स के बीच में जब प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा तो हम उसको देखेंगे। सो स्मोकिंग विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ लंग कैंसर इन ए पर्सन देन ए पर्सन हु डू नॉट स्मोक। ये बिल्कुल सही बात है, जो स्मोक करेगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो नहीं करेगा उसके ऊपर नहीं प्रभाव पड़ेगा। देन वी हैव ए रिसर्च एथिक्स। This type of hypothesis is derived from some type of theory or some observation and examination. In other words, the hypothesis set upon the basis of theory or prior observation or logical grounds के ऊपर हम बात करते हैं। This is very important. Formulation of hypothesis. हमने hypothesis को formulate करना है तो what are the different steps? A hypothesis is formulated after, ये जो मैंने बोला, the problem has been stated and the literature study has been conducted. It is formulated when the researcher is totally aware of the theoretical and empirical background of the problem. आपको जानकारी होनी चाहिए theoretical भी और empirical भी. Hypothesis is formulated using induction and deduction method. Hypothesis will be generated from the problem statement. और ये problem statement क्या होता है? Problem statement होता है जो आपने टॉपिक तय किया है उसके बारे में आप जब आप उसके बारे में चर्चा करते हैं. So what we should do? Read the problem statement thoroughly, narrow or limit it express, and it is research question. The research hypothesis has two elements, variables that are in relation to one another. Avoid judgmental words in hypothesis. Hypothesis must involve an issue or question that cannot be answered exclusively. It is best to choose a hypothesis where there is some level of familiarity with the discipline that are most relevant to the topic. मैं साइंस का व्यक्ति हूं, मैं साइंस की रिसर्च लूं, मैं सोशल साइंस में नहीं फंसू, क्योंकि सोशल साइंस का फर्क और है, गांव और शहर में बहुत ज्यादा अंतर है, अमेरिका और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा अंतर है, शिमला और शिलोंग में बहुत ज्यादा अंतर है. सो फैमिलियरिटी मस्ट बी देयर. मुझे आइडिया तो हो, क्योंकि मैंने पूरी उम्र थोड़ी लगानी है इस काम के लिए. It is to be noted that hypothesis may change over time as a research progress. समय के हिसाब से उसकी हाइपोथेसिस बदलती रहती है. सो मैंने आपको एक टर्म यूज किया था, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू करंटली एग्जिस्टिंग व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. कोई आपको समाज में घटना घट गई, उसका आपने टॉपिक ले लिया, आपके दिमाग में वो स्ट्राइक की, उसके ऊपर आपने रिसर्च कर ली. इट प्रोवाइड द कंटेक्स्ट फॉर द रिसर्च स्टडी एंड जनरेट द क्वेश्चन व्हिच आर रिसर्च एम्स टू आंसर. आपने प्रश्न उत्पन्न किए कि ऑनलाइन एजुकेशन का बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट है. Is there is internet speed? Is there is internet facility? What is the economic criteria? Economic perception क्या रहेगी? क्या एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेशन दे पाएगा? Because it required smartphones. And is it possible for a जो आपकी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं जहां 2-2, 4-4 बच्चे हैं, कैसे वो देंगे? The statement of the problem is the focal point of research. ये बड़ा है. So writing problem statement क्या करना? Describe the ideal state of affairs. Explain your problem, financial cost. जो मैंने कहा, back up your assertion, propose a solution, explain the benefits of the solution, conclude by summarizing the problem and solution. So I'm leaving this has nothing to do with you. So this is also connected with this hypothesis versus theories versus fact. A theory is a well-established principle that has been developed to explain some. जो theory है that has been already given. This is very important. That is already in the field. A hypothesis is specific, testable prediction about what you expect to happen in your study. आप क्या चाहते हैं अपनी स्टडी में? For example, a study designed to look at the relationship between study habits and test and anxiety might have a hypothesis that states this study is designed to assess the hypothesis that students with better study habits will suffer less test and anxiety. कम प्रभाव पड़ेगा उनका उस चीज के ऊपर. So these are some of the terms. If you see about the comparison, you see hypothesis क्या है, theories क्या है, facts क्या है. Hypothesis क्या है? A specific testable prediction about what is expected to happen in a study.
थ्योरी क्या है? वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल विच प्रेडिक्ट्स इवेंट्स इन जनरल टर्म्स, और फैक्ट्स क्या? इज समथिंग विच इज assumed to be true. Secondly, it makes a specific prediction about a specified set of circumstances. A hypothesis is a speculative guesses that has yet to be tested, is new and relative, untested. The probability of error and correction are high. So you see, these are the basic difference about this all. So if I'm talking about the one very important issue, this is nothing you have to do with this. In concluding, I can say why the study should be done, the specific purpose of study and the research question it attempts to answer, the decision to why the research design and methods used were chosen over other options, the potential implication emerging from your proposed study of the research problem, and a sense of how your study fits within the broader scholarship about the research problem. So इन सब चीजों के लिए जब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, तो जो हमारा हाइपोथेसिस का पर्सपेक्टिव रहता है, वो किसी भी रिसर्च को आगे ले जाने में आपका एक जो आपकी डायरेक्शन है उसको नैरो करता है, उसको स्पेसिफाइड करता है, आपके टूल्स एंड टेक्निक्स को डिफाइन करता है. सो इन दिस प्रेजेंटेशन वी हैव बीन स्टडीड कि हाइपोथेसिस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसका पर्पस क्या होता है हाइपोथेसिस का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, एंड हाउ वी कैन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. दिस सेशन इज ओवर. आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर एंड ऑल माय फेलो पार्टिसिपेंट्स हु heard me, and if there is any question, and probably there is question, I welcome all your questions. Over to you. I think Suren Shahu has raised her hand. So she can Good ask. evening, ma'am. she Good can evening, ask- all. Yes, good evening. Sir, Ji, Joginder, sir. जी साहब. Sir, my experimental work is based on sleep disorder, and I belong to computer science. So Okay, sir. whether I need a hypothesis test or a hypothesis required for that, or it is not required for all type of experimental jobs, experimental works. Saab, देखिए one thing which is very important for you. When you have been constructed your this research proposal, जब आपने अपना टॉपिक तय किया, तो आपने कुछ उसमें parameters, you raise some research question in especially in social, especially in medical sciences. This research hypothesis should be required, but in social sciences it is hardly matter. But when we are talking in this computer science or social sciences, our research question are similar with hypothesis. Testability must be there. If you want credibility of your this research, that must be your hypothesis must be tested. The research question which you have been raised during your this research proposal, you are definitely going to answer them. Yes, my question is whether a hypothesis is required or not required for computer science topic. No. In computer science and social science, we have this research question. They have been treated as a hypothesis. Okay. आपका जो ऑब्जेक्टिव हो, मतलब आप रिसर्च क्वेश्चंस की भी बात नहीं कर रहे हैं. If we raise some objective of the studies, हमारा जो चैप्टराइजेशन होता है, probably that depends upon this research question or the research objectives. So objectives, research question, hypothesis, they are interrelated terms. Okay. Yes, please. किसी का कोई क्वेश्चन है? Any question? तो Sir, good evening, sir. जी मैम, good evening. Sir, I'm in the beginning of my research, sir. And you said in the theory, see, we have a lot of theories, sir. And based on this theory, we can formulate the hypothesis you said. But theory is the one which is already proved one, sir. Then how we are formulating the hypothesis in it? You kindly आपको अपना stream बताइए मुझे. Sorry? See, you are from medical, social science. What are your stream? आपका subject क्या है? I'm economics, sir. Okay, ठीक है. आप social science के हैं. ये जो मैंने peer review कहा मैम, there is a review of literature. हम review of literature क्यों करते हैं?
we generally try to find a gap between the study which has been already conducted and the research proposal which we are carrying on, and we are saying in the statement of the problem that there is a lot of work which has been already done on the field, but I am going to study this particular aspect. कोई नई चीज उसमें जो आती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पीयर रिव्यू, आप जो peer review आप करते हैं, that is to gain the ideas, that is to enhance your knowledge, that is to expand your horizon, your views and thoughts process की ये काम हो चुका है, और हम अपने काम में इस आइडियाज को लेते हैं. रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों होता है किसी भी फील्ड में? सो दैट यू हैव ऑलरेडी आइडिया. मैंने कहा कि देयर मस्ट बी सम एम्पिरिकल रेफरेंट. आपका जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसका कोई धरातल पे बेस तो होना चाहिए ना. तो धरातल पे बेस का पता कहां से लगेगा हमारे को? हमें वहां से लगेगा जब हम उसके ऊपर जो ऑलरेडी काम हुआ उसको रिसर्च करेंगे और कोई नई चीज देंगे. मैंने कहा कि रिसर्च इज नथिंग बट इट इज लिटिल बिट ऐड टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज. आर यू गेटिंग? Not completely, sir. कंप्लीटली मैम इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज यूर इन द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च. आप मुझे अपना टॉपिक बताइए, मैं आपको सेटिस्फाई करके जाऊंगा, कोई नो इशू. आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? Madam, please tell your topic. It's just awareness about health insurance. हेल्थ Insurance. ओके. अब आप हेल्थ इंश्योरेंस का लेते हैं तो आप ड्रॉ करेंगे ना, देयर आर डिफरेंट स्कीम्स. तो आप सबसे पहले तो मैम आप रिव्यू करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट हेल्थ स्कीम्स. देयर इज नॉट ओनली वन, there are different health scheme. There are many. In case of my Himachal Pradesh government, the honorable chief minister of this state has been started a health scheme. Ayushman Bharat hai, Him Care Yojana hai. ऐसी there are so many schemes which has been given benefit to the poor people. हमारे यहाँ पे 5 लाख रुपए तक जो स्कीम है उसमें फ्री का इलाज होता है, जो भी है, whether that is in government job और नॉन गवर्नमेंटल जॉब. सो आप लोगों को बताएंगे. यदि मान लो आप हिमाचल के होते तो आप ये बोल सकते थे कि हिम केयर योजना का व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ सेक्टर ऑफ दिस हिम केयर स्कीम. क्योंकि फ्री चीजें हैं. आपको हॉस्पिटल में आज देखिए, आप कैंसर जैसी बेइलाज बीमारी के लिए 5 लाख in a year, और there are so many other diseases जो उसमें कवर हो रही हैं. सो आपने डिफरेंट हेल्थ स्कीम्स को तय किया, फिर आपने अपना पैरामीटर तय किया, फिर आपने एक स्कीम ली और उस स्कीम का आप अध्ययन करेंगे. सो मैंने जो पीर रिव्यू की बात की या जो मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग यू हैव एन आइडिया. जब हमें रास्ते का ही पता नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे कोई भी चीज, और रास्ते का पता कहाँ होगा? जब आपको, मैंने एक चीज और टर्म यूज की थी, यू शुड बी फैमिलियर विद योर एरिया. आपकी एम्बियंस क्या है, आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है, उससे आप फैमिलियर भी तो होने चाहिए ना. जिस चीज का पता नहीं उस रास्ते में कैसे जाएंगे? आप अपने घर को जहां पैदा हुए हैं आज भी आंखें बंद करके जा सकते हैं, लेकिन आप मेरे घर में थोड़ी पहुंच पाएंगे आंखें बंद करके, बिकॉज यू आर नॉट फैमिलियर विद द पैसेज. सो वन शुड बी फैमिलियर, वन शुड हैव ए बैकग्राउंड स्टडी. ये कह रहा हूं मैं. वो आप उसके लिए आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर चाहिए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप क्यों देते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की? एग्जिस्टिंग चीजें बहुत सी हैं, इतना ज्यादा काम हुआ है, लेकिन मैं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रिसर्च गैप है मेरी रिसर्च में, उस रिसर्च में और इसमें, उसको मैं दर्शाने की कोशिश करूंगी, और वो आप तभी दर्शा पाएंगे व्हेन यू हैव ए कंपैरिजन. Okay, thank you, sir. कोई और कुछ पूछना चाहे? We have around 13 minutes. Madam Kalavati wants to ask something. जी मैम. गुड इवनिंग सर. मैडम जी, गाना बंद कर दें, आप ही बोलें, अच्छी बात रहेगी. Okay. Good evening, sir. This is Kalavati. Sir, Yeah. actually, I have a doubt regarding this. So, हाँ, just बोलिए. now you have discussed the topics, hypothesis, empirical hypothesis. So, will be the same for each and every subjects, or else it will be different from each and every subject? नहीं मैम, this is stream wise. Basically in medical sciences we have to, our hypothesis should be proved. आपने 2 into 2 4 बोला, या आप कोई पैरामीटर्स करते हैं मेडिकल साइंसेज में, या मान लो अभी कोरोना का मैं आपको पेंडेमिक टाइम का एग्जांपल देता हूं. हमने मेडिसिन तैयार किया मैम, कोवैक्स भी किया, कोविड शील्ड भी किया, तो वो तो प्रूव होगी चीज तभी आएगा. लेकिन सोशल साइंसेज में हम उसका इफेक्ट और देखते हैं.
सो हाइपोथेसिस अलग अलग होती है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है और उसको आप यूनिफॉर्म नहीं ले जाते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस हर जगह चाहिए। हाइपोथेसिस का मतलब बेसिकली ये हुआ कि हम एक टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना करके चलते हैं। मैं अपनी रिसर्च में आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू ऐड दीज थिंग्स, और ये मेरा पैरामीटर्स होगा, ये मेरे टूल्स होंगे, ये मेरा टेक्निक्स होगा, और मुझे टाइम के हिसाब से भी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल की स्टडी करूंगा, तब तो स्केल ही नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर बने हम जब हम बुजुर्ग हो गए, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट वी आर डॉक्टर। I'm still doing, sir. You got your answer, ma'am? Completely, sir. Okay, thank you, ma'am. Ji, please. Anybody else? अपने को म्यूट कर दीजिए मैम, आप अनम्यूट हैं, म्यूट कर दीजिए। कलावती मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जी कहनी मैम, हमारे जो दिक्कत है, पर्सनली मैं बहुत से कोर्सेज करवाता हूँ। Sir, actually, you are explaining wonderfully well. I am under impression that many of them are not understanding maybe Hindi. हम मैम Hindi. basically Yeah. we use bilingual, or Yeah. majority of the participants probably from Hindustan. Yes. But I think they didn't follow, so that's the reason they are. नहीं मैम ऐसा भी नहीं है, I use bilingual, ऐसा भी नहीं है, but people are not in a habit to ask. Yes. This is my personal experience. Good. Maybe some people have language issue, but that is there. Yes. Good sir. evening, sir. जी बात हिंदी की इंग्लिश की नहीं है मैम, बट वी नो दैट द थिंग इज दैट एनीवे हु आर इन MPhil or PhD they will know about all those things. My yes question to you is, if the new education policy has changed, no? So if students, undergraduate students are doing projects, if they have to also follow the hypothesis or not? yes ma'am, everybody one and all who is in It's research. mandatory. It's a mandatory. This is not a question about mandatory or something else. NEP is also mandatory of doing projects. No, ma'am. You listen me. This NEP is exclusively talking about the project work for students, especially when they are going to discuss something in the field, to research something about the field. So they require some hypothesis. Hypothesis has nothing to do with the empirical reference. It is only a preliminary explanation, ma'am. You just made your ideas. आपका थॉट प्रोसेस है और वो आपको एक सही दिशा की ओर लेके जाएगा। और हाइपोथेसिस हम एक अंधेरे में तीर चलाते हैं और हम उस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो हाइपोथेसिस तो हर जगह होगी मैम, चाहे सोशल साइंस है, चाहे मेडिकल साइंस है, एक हम मान के चलेंगे। Hypothesis must be there. Yes, thank you. In basically in social sciences, we address this hypothesis in the form of objective of the study or the research question, ma'am. Yes, I belong to economics department. Yes, you know it because I am from political science. So we have no hypothesis, but we write research question, and sometimes we also talk about hypothesis. Hypothesis is a little bit statement of the problem. Yes. जी कोई और कुछ? If anybody else want to ask any question, then it's okay. Otherwise, जो organizer का आदेश। Do you have any other questions? Any more questions? You can raise your hands and you can unmute yourself. Sahu sir want to ask something. Yeah. Sir, one doubt is there. So when you are collecting the primary data from a particular environment or area, so hypothesis is compulsory required. But for Sir, you see, in case of Sahu sir, you see, there is no correlation between hypothesis. What do you understand about hypothesis? Hypothesis, the basic purpose of the assumption, one of the hypothesis. assumption. सर देखिए, हाइपोथेसिस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इट स्टेट फॉरवर्ड योर आइडियाज, तो आपका रिसर्च के पैरामीटर्स को तय करता है
डाटा कलेक्शन क्या होगा, टूल्स क्या होंगे, टेक्निक्स क्या होंगी, उसके बारे में बात बताता है। और ये आपकी रिसर्च को एक सही दिशा की ओर ले जाता है। जब आप प्राइमरी डाटा इकट्ठा करेंगे, उसके लिए हाइपोथेसिस तो आपकी रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड है ना। आपका जो डाटा है, दैट इज डाटा, सैंपल, टूल्स, टेक्निक्स, दिस ऑल रिलेटेड विद योर टॉपिक। जब आपने कोई मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट ले लिया मान लो, या एनवायरमेंटल आप कोई चीज ट्राई कर रहे हैं, तो प्राइमरी डाटा आपको कलेक्ट करना है, तो आपको वो आपका टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। हाइपोथेसिस इज नॉट अबाउट कलेक्टिंग ऑफ डाटा, हाइपोथेसिस इज अबाउट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रॉब्लम, इट इज ऑल अबाउट योर रिसर्च टॉपिक। Okay, sir. Good evening, sir. जी, Sir, you told one statement you told how to we have to find out the truth. यस, We have to find out the truth, that is maybe in the questionnaire. Then generally people will not give the correct answers, no? How to find out the truth from them? yes, this is very important. In the beginning I have used the term Hawthorne effect. This is observer effect. आप एज ए टीचर हैं, आपको पता है कि क्लास में कौन चोर होता है, कौन चालाक बच्चा होता है, कौन तेज बच्चा होता है, सबका पता होता है ना मैम। सो दिस मैंने कहा कि when somebody knows that he or she has been observed, there is alteration. मेरी सास सबसे अच्छी है, सासू माता मेरी सबसे अच्छी है। कब सबसे अच्छी है? जब मैं लोगों के बीच में हूँ। लेकिन ऐसे मेरी सास सबसे खराब है जब मैं लोगों के बीच में नहीं हूँ। हर सास बहू की बुराई करती है, क्योंकि सास भी एक दिन बहू थी। सो माई क्वेश्चन इज, आपको at this point of stage you use your personal observation. आपका अपना जो बिट है आप उसको यूज करते हैं, और सच बुलाने की क्षमता आप जाहिर करते हैं। ये जो अल्टरेशन है ना, ये होती है ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, sir. और हमारा काम ही मैम सच को बाहर लाना है, और सच को बाहर लाने के लिए हमें जजमेंटल नहीं होना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, हमें एक कोई प्री ऑक्युपाइड माइंड के साथ नहीं जाना पड़ेगा कि मैं किसी, मान लो मैं पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति हूँ और मैं स्टडी कर रहा हूँ कि एनडीए की सरकार का क्या होगा, या मैं मान लो महाराष्ट्रियन पीपल यहाँ पे होंगे, मैं स्टडी कर रहा हूँ कि शिवसेना का क्या होगा। तो मैं इसलिए शिवसेना को खत्म नहीं कर सकता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी से डटा हूँ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, व्हाट शिंदे इज सेइंग, उद्धव ठाकरे की पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, वो सारी चीजों के ऊपर होगा। सो मैं ये मान के नहीं चल सकता हूँ प्री ऑक्युपाइड कि ऐसा ही होगा। जजमेंटल वर्ड्स कांट बी यूज्ड इन रिसर्च। हमें बहुत से मामले में हम जजमेंटल होते हैं, हम बच्चे को चूज करते हैं तो जजमेंटल हो जाते हैं। सो नेवर बी ए जजमेंटल इन लाइफ। हमें ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, लोगों से सच बुलवाने की हमारे को आदत होनी चाहिए। अब आपने देखा, देयर इज ए पर्सनल फैन फॉलोइंग ऑफ पीपल्स। आज मोदी को लाखों लोग सुनना चाहते हैं, मोदी के मन की बात को लाखों लोग सुन रहे हैं आज की डेट में। आप देखेंगे जो रिलीजियस प्रीचर हैं, इनके पीछे दुनिया क्यों पागल रहती है, बिकॉज दे हैव ए दैट टाइप ऑफ फेल्यूर। वो आप में क्षमता होनी चाहिए। और वो ये जो रिसर्च है, मैंने कहा कि सबका काम नहीं है। मैम जोसेफ इज आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस एनईपी में कह दिया कि रिसर्च इज नॉट मैंडेटरी फॉर यूजी लेवल। आप पढ़ाने का काम कीजिए, दिस इज मैंडेटरी फॉर यूनिवर्सिटीज एंड अबव इंस्टीट्यूशन। सो उसमें भी डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन फिर भी जो, बिकॉज some people is interested in research, some people is interested in some other field, they are in teaching, so this is a little bit different things. Should have more patience. Yeah, for researcher you have a patience. लोग तो बोलते नहीं, आप you know this is a art कि सच कैसे बुलवाना है आपको। This is your intelligence. Yes, sir. Thank you, sir. You see, ma'am, I'm very much open and very blunt to say the things. If we are searching, या हम रिसर्च कर रहे हैं पर्सनल बिहेवियर के ऊपर, फैमिली रिलेशंस के ऊपर कर रहे हैं, मान लो हम सेक्सुअल लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, पति पत्नी की सेक्सुअल लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, या मान लो उसमें कोई थर्ड एंगल भी है, ये चीज हम पढ़े लिखे लोगों से पूछेंगे, दे हैव वेरी कॉमन परसेप्शन अबाउट इट। लेकिन गाँव में जाएंगे, हल्ला हवा हो जाएगा एक किस्म से, बिकॉज दे हैव डिफरेंट परसेप्शन। तो हमें सच बुलवाने के लिए भी बहुत सी चीजों को वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। दैट इज एबिलिटी, और वो हमें होती है, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट ए टीचर। हम जिस प्रोफेशन में, मैम, उस प्रोफेशन में आने के लिए बहुत कर्म करना पड़ते हैं। वी आर लकी वन। दुनिया को हम बना रहे हैं, जो मर्जी बोल रहे हैं, IAS HAS सारे हमारे से ही बने हुए हैं। आज वो हमारे ऊपर जितने मर्जी रूल लगा दे, बट वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मदर नेचर। जो अकेडमिक का मदर नेचर है, उसके हम पार्ट एंड पार्सल है। जी प्लीज, कोई और पूछना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप आराम से पूछ सकते हैं। टाइम हैज नो कंस्ट्रेंट। Good evening, sir. जी मैम। So this is Vinita. या मैम।
Sir, can you please explain the statement of the problem once again? क्या बोला मैम? What are you saying? Statement of the problem once again. Statement of the problem. Statement of the problem. एक मिनट के लिए मुझे कागज निकालने दो. बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू करंटली एग्जिस्टिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. सुने आप थोड़ा ध्यान से बाकी भी. It is the description of an issue currently existing which needs to be addressed. It provides the context for the research, study and generate the question which the research aims to answer. आपने क्वेश्चन रेज किया, आपके दिमाग में प्रश्न आया. देखो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि आज की डेट में पेंडेमिक के टाइम में व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन द स्टूडेंट्स. ठीक है, अब आपने क्या किया, ये आपका एक इशू रेज हो गया. देखिए मैंने क्या कहा, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू करंटली एग्जिस्टिंग. अब इशू आ गया, विच नीड्स टू बी एड्रेस. मैं एड्रेस कर रहा हूं इसको. अब क्या चाहिए मुझे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी एंड जनरेट द क्वेश्चन. अब मैं क्वेश्चन जनरेट करूंगा. अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि इस ऑनलाइन एजुकेशन का मेरी आईज के ऊपर क्या प्रभाव है. एक चीज, मेरे बिहेवियर के ऊपर क्या प्रभाव है. दूसरी चीज, बच्चे क्या देख रहे हैं. तीसरी चीज, कुकीज आती है ना, ये 8 से 8वीं और 12वीं वाले बच्चे, जो हमारे सारे बच्चे, मेरे और आपके बच्चे 8वीं 12वीं में, आप कैमरा नहीं लगा सकते हैं मैम बच्चे के सिर के ऊपर को क्या देख रहा है, वो क्या देख रहा है, उसका इम्पैक्ट. चौथा मेरे मन में प्रश्न आया कि जिन लोगों की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, दोज पीपल हु हैव नो वेल ऑफ, उनके बच्चे किस तरह से पढ़ रहे होंगे. सो हमने क्या किया, हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है, हमने उसको एड्रेस कर लिया, हमने इशू जनरेट कर दिए, और हम अब इस इशू को आंसर देंगे कि क्या प्रभाव है. तो मैं फील्ड में जाऊंगा कि भैया ऑनलाइन एजुकेशन का क्या फर्क है. मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूंगा कि कितने बच्चे, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, कि बहुत से बच्चों के आईज के ऊपर स्टेन्स आ गया, चश्मे लग गए, चिड़चिड़े हो गए. फिर उसके बाद मैं फील्ड में जाऊंगा, मैं डॉक्टर को पूछूंगा कि प्रभाव क्या पड़ा. आप देखेंगे इतने ज्यादा पोर्नोग्राफी हो चुकी है, ये जो 8 to 12 बच्चे हैं, कि उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. ये एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है. फिर मैं ये स्टडी करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन ऑन द पुअर फैमिलीज. क्या वो इस पोजीशन में है कि अपने हर बच्चे को एंड्रॉइड फोन दे सके, स्मार्टफोन दे सके. नॉट पॉसिबल. एक माँ बाप थोड़ी, वो समय चला. ऐसे भी बहुत सी फैमिलीज है जिनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई 5वीं में, कोई 8वीं में, हर बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोबाइल चाहिए. तो वो दीज आर द रिसर्च क्वेश्चन विच आई एम रेजिंग, और उनका मैं आंसर दूंगा. तो मतलब क्या हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट का या हाइपोथेसिस का भी, कि जो मेरा रिसर्च टॉपिक है, मैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव तय करूंगा, कुछ रिसर्च क्वेश्चन तय करूंगा, उन रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर मैं प्रिलिमिनरी रिसर्च करूंगा, इंपेरिकल रिसर्च करूंगा, और उसकी रिसर्च के बेसिस पे जो रिजल्ट आता है उसको इन द फॉर्म ऑफ फाइंडिंग्स और इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन मैं दूंगा. और वो उसके बाद जो है वो मेरी रिसर्च जो है दैट शुड बी दैट मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं गांव में गया लास्ट टाइम, मैंने सर्वे किया कि ये जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है, मेरे को ऐसी इंटरेस्ट जा गया कि इसका स्टडी करता हूं. अगली बार मैंने देखा, बिकॉज वी हैव ए ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम. आई आस्क माय ताऊ जी, ही इज अबाउट 80-90 years. ताऊ साहब, ये पानी में मच्छर क्यों भिन बना रहे हैं. उन्होंने कहा सिंपल, यू सी मैडम संध्या बिरानी भी, उनका आप ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम देखिए. वी हैव ए पीपल जो दाई होती थी, हाथ देख के बता देती है कि जुकाम कितना है, बुखार कितना है. आज उस जो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था, वो इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा कामयाब हुआ. लोग गोमित्र पी रहे हैं, लोग आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, लोग काढ़े की बात कर रहे हैं. हिंदुस्तान में देयर इज हार्डली एनी इम्पैक्ट ऑफ दिस. जितने फॉरेन में लोग, सो यू सी, मैं कह रहा था कि इन चीजों का कहीं ना कहीं पे बहुत असर होता है. तो जो मैं क्वेश्चन रेज करता हूं, उन क्वेश्चंस का मैं जब आंसर देता हूं, दिस इज सिमेट्री, ऊपर से लेके नीचे तक एक सिमेट्रिकल है. आपने एक रेज कर दिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन किए, उनका आपने फील्ड में स्टडी किया, और उनको आपने इंटेंट टू आंसर करने की कोशिश की. दिस इज ऑल अबाउट योर रिसर्च डिजाइन एंड ऑल अबाउट योर रिसर्च प्रपोजल और प्रॉब्लम स्टेटमेंट. I hope Madam Binuta, you got your point. Yes, sir. Thank you very much, sir. Welcome. Ji, Thiru Saab, Imran Saab, you want to ask something? Excuse me, sir. Yeah, please. Excuse me, can you hear me, please? Yes, sir. Yes, sir. I'm hearing you. Sir, I'm sorry to say that the most of the explanations are given in Hindi, and we are from South India. It's not possible for us to understand what you say. And what about your explanations? It's better if you give the explanations in the English language, because this is international FDP, no, sir. Kindly excuse me for asking this.
Okay, okay, sir. If you have any question, you ask, sir. No, sir, actually, I don't have any questions. But the thing is that when the people I ask got your you point, sir. question- But because we have to be bilingual, there is people from both places, south as Yeah, well yeah, as yeah. north. So we have to Because take care of many things. And secondly, my this PPT is all in English. This is not in Hindi, sir. because we are very much interested to know what the things are going on. But most of the conversations are I have in no problem with Hindi. English. I have no problem with English, but I do agree with you that you people have some problem with Hindi to understand it. Question you like Otherwise, you have this. no problem. I know that. Sorry But to say, sir. my PPT is in English, sir. Okay, thank you, sir. Swarna. Swarna would like to ask a question. Good evening, ma'am. Yes, good evening. Good evening, sir. Ji, ma'am. Good evening. Sir, I'm Swarna Bhogal from GDC Ramnagar, Jammu and Kashmir. Sir, Proceed, aap hamare. Sir, may I get your email ID or WhatsApp number, as I am also the scholar of political science and doing research. Likhiye, ma'am. Otherwise, you Google this HRDC Shimla. Everything is there. Okay, sir. HRDC Shimla. Otherwise, you write on my this WhatsApp number 94184 184. 52390. Thank you so much, sir. Okay. Ji, Dr. Kendi, ma'am, please. I think somebody has raised hand, no? nahi, it is Thiru sir who already. Over, okay. So are there any more questions or shall we wind up? I think Father Balaswamy, somebody would like to ask question. I saw Father on the screen. If somebody want to ask, ma'am, no issue. I will answer. Okay, then shall we wind up? As you wish. This is up to you. I am at your disposal, ma'am. Yeah. So we have come to an end of our session. So both the sessions were very lively presented, and then special thanks to Dr. Shaklani. You have explored so wonderfully well about the hypothesis. Actually, it is not a easy topic to be spoken. It's a very, very tough topic, because understanding hypothesis itself is, half of the research done. So sir has highlighted on various aspects of hypothesis and the statement of problem, because we all went through the research journey and we know the importance of hypothesis. So it is a race question, asking answer to the question. So the entire thesis is answering to the question. Sir, you have wonderfully explored your some part of it people felt that it was in Hindi, but still it was understandable. And we are very, very grateful to you. And your knowledge and expertise on this subject is amazing. And really hats off to you, sir, in this area. Though it is a very tough topic, but still you have taken a lot of time to explain and to answer each and every participant. So we are greatly thankful to you on behalf of Cape Comorin Trust and on behalf of Andhra Loyola Institute of Engineering and Technology organizing this 5-day FDP. You have set the tone very well for the conference, and we are really grateful to you. Thank you so much. Ma'am, one thing I would like to say here, some of the participants are asking about this medium, whether that is in Hindi or English. Personally, I believe that my communication should be reached to the people. This is point number one. And secondly, the same point may be raised by the Swarna madam from J&K, because she is not comfortable in English like that. So it is hardly matter. No, sir. No, sir. I'm saying just there are some people. Because I am from northern part of the India, we generally use bilingual methods here. Yes. So that's there, but my PPT is, and even when I talked to the organizer, the madam, she told me or informed me to be bilingual, but it hardly matter, ma'am. My purpose is to communicate my ideas, and probably I hope that I came up to your expectation, as well as the level of the discussion and the question which has been raised by different fellow participants who are in this course, that exactly showing many things.
Yes, तो sir. कई It बार was हमें very मुंह lively, की और sir. आंखों की भाषा भी समझना पड़ती है मैडम, इशारे भी बहुत होते हैं ना. So Yes, sir. thank you. Your talk was amazing. It was very lively. You were fully involved into the talk. So that's why at times you went bilingual. I can understand that. You have really done justice to the topic, sir. It's not Thank you. easy to talk on hypothesis, but you have selected a tough topic and done justice to the topic. Thank you, sir, Thank so you. much. So nice of you. And So I'm also thanks. thankful to Madam Selja for inviting me. Selja Basudeva, who is your co-coordinator of this course, probably, in what position she is, I don't know in this FDP, but she contacted me, and I love to deliver. And because personally, I hope that in every type of deliberation or discussion or this such type of presentation, you learn many things for yourself too. बहुत सी Yes. चीजें सीखते हैं मैम, इसलिए अच्छा लगता है. Thank you. Yes, जय sir. हिंद, जय भारत, जय हिमाचल.